इको है तो ना ओके let me present my screen. Hopefully you have completed your assignments and homework. So yesterday we discussed about list comprehension. Let me down. So list comprehension we use it for the optimization. Code optimization के लिए हम list comprehension use करते हैं and um, most of the logic we can write it in the list comprehension form. Okay, so list comprehension nothing but एक line में आपको program लिखना है पूरा जो भी आपका logic है. Okay, clear. So हमने दो चीजें देखी, data types in detail में string, data types in detail list. So we started with properties. List, what is a list? Square bracket में हम लिखते हैं. Then we started with how to create a list, list कैसे बनाते हैं. Then how to access the element, list के अंदर के जो elements है उसे कैसे access करना है. That we do it using indexation and slicing, right? So we use something called indexation, मतलब एक number generate होता था, right? यानी ये देखिए ऐसे something like this we used to get, और ये number use करके हम list के element access करते थे. इसका ही advanced version है called slicing, right? So start, end, -1 step. So we use that logic to slice and cut the list. उसके बाद operations, mathematical operation, logical operations, arithmetic operations based on the list. List के ऊपर जो जो operations होते हैं वो हमने देखा, right? Then most important thing methods. List के ऊपर जो inbuilt methods है वो हमने देखा. So we check the documentation as well. List dot some example I'm not exactly remember, but yeah, insert, append, extend, pop, right? Then join, merge, बहुत सारे हैं functions. So ये हमने documentation follow करके we completed. Yes, okay. Yesterday's video not uploaded. Yeah, I know. So today I will upload it. Okay, so there was a issue with the logging, so I'm not able to log into the office YouTube account. So today I will log in it from the network. Okay, so not an issue. You will get it. आज का और कल का वीडियो दोनों का आपको साथ में मिलेगा. Okay, yeah. Okay, so add, remove, append, extend. फिर उसके बाद we checked about sort, remove, deep copy, shallow copy, right? These are nothing but methods. Uh, so we concluded this with the we concluded all these operations and the logic, everything with the comprehension part. जो comprehension हम कल पढ़ रहे थे, right? So within a one line you can create everything. So now आज हम पढ़ेंगे next data type. In the data type जो derived data types है, string, list, tuple, set, frozen set, dictionary, right? So in that order we'll start with the tuple. So tuple, again it is denoted by parenthesis. इनको parenthesis बोला जाता है, sorry. So this is nothing but a parenthesis, मतलब ऐसे brackets आएंगे दो. लिस्ट में क्या हम स्क्वायर ब्रैकेट देते थे. ओके, सो टपल इज नथिंग बट दिस वन. Then it is immutable collection of data.
Immutable मतलब add and remove doesn't work or add and remove is not possible. So can we call it a read only? मतलब लिस्ट में हम ऐड और रिमूव कर सकते थे बट टपल में हम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते. एक बार क्रिएट हो गया टपल, सो इट इज अ परमानेंट. एनी आइडिया इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि एक लिस्ट है हमारे पास, तो टपल एज अ डेटा टाइप क्रिएट करने का क्या पर्पस है? So gender and other information. Yes. Yeah, the information which cannot be changed. मतलब हाँ, जो परमानेंट रखना है उसके लिए. ओके, एंड एनी अदर एप्लीकेशन? मेजर एप्लीकेशन इज इन द फाइनेंस डोमेन. फाइनेंस में इसका बहुत मेजर रोल है. सो कैन एनीवन गेस? Payment Payment history, sir. history, sir. Yes, payment history, or can we say payment as well? Yes. Yes. मतलब मान लीजिए आपने जस्ट टेक एन एग्जांपल यूपीआई. मैंने आपको लाइक इफ आई सेंड यू 100 रुपीज, तो आपको कितने रिसीव होते हैं? 100, राइट? व्हाट इफ यू रिसीव 98? विल दैट वर्क? मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसको हमने लिस्ट के फॉर्म में सेंड कर दिया, तो क्या हो सकता है? देयर कुड बी चांस ऑफ मैनिपुलेशन, राइट? सो बैंकिंग रिकॉर्ड्स, जो ट्रांजैक्शंस, आपके जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है और रिकॉर्ड्स है, दोज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टपल. व्हाई? क्योंकि टपल इज अ इम्यूटेबल कलेक्शन. ये एक बार क्रिएट हो गया तो ये चेंज नहीं हो सकता. व्हाट इफ मैंने आप लिस्ट स्टोर कर दिया, मतलब आपके बैंक अकाउंट का जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर दिया, तो क्या ना अपेंड, मतलब 10 लाख रुपए है आपके अकाउंट में तो मैं 20 लाख कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज म्यूटेबल, राइट? So that's why the purpose of creating tuple is to store or to maintain the consistency. मतलब जो ये प्रॉपर्टी है कॉल्ड इम्यूटेबल, ये अचीव करने के लिए हमें लाइक पाइथन हैज क्रिएटेड अ टपल डेटा टाइप, राइट? Okay, so next one is heterogeneous collection. Heterogeneous मतलब अलग अलग डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं. होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, as in I can store integer, string, float, complex, right? List, टपल के अंदर मैं टपल भी स्टोर कर सकता हूँ, टपल के अंदर लिस्ट, सो दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोजेनियस प्रॉपर्टी. इंडेक्स एंड स्लाइसिंग, जो लिस्ट में इंडेक्स एंड स्लाइसिंग हमने देखा है, राइट? नंबर्स वगैरह, दैट वर्क्स इन टपल एज वेल. देन default data type in Python. So tuple is a default data type. Hope you remember the lecture args and quarks. args स्टार करके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था फंक्शन में, उसमें args का डेटा टाइप टपल था. ओके, इफ यू डोंट रिमेम्बर, लेट्स गो बैक एंड चेक. तब मैंने बताया था कि आपको ये डिफॉल्ट डेटा टाइप है. फंक्शन, right? Online, anyone remember what is args, what is quarks? args का program, addition of two numbers. hmm? Yes, here it is. ये याद है क्या? सम ऑफ मेनी नंबर, हमने सम ऑफ टू नंबर लिखा था, सम ऑफ थ्री नंबर लिखा था. देन आई आस्क्ड, आपको एक होमवर्क दिया था, मुझे 100 नंबर पास करने हैं एंड उसका एडिशन चाहिए. याद आया कुछ? आप लोगों ने होमवर्क किया होगा. फिर उसका नेक्स्ट डे मैंने सॉल्यूशन बताया था. देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्क्स, मतलब ऐसा स्टार करके आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो
and you can pass the different numbers, as in you can pass as many numbers as you want. एक दो तीन कितने भी नंबर आपको रहेंगे तो वो पास हो जाएंगे यहाँ से, राइट. एंड देन आई गेट अ रिटर्न इन द सम, और ये क्लास टपल दिख रहा है. ये आर्क्स का हमने यहाँ पे टाइप चेक किया है, टाइप ऑफ आर्क्स, तो ये हो गया टपल. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप. Okay, so let's come back to the point called tuple heterogeneous indexation slicing. We'll continue with our same approach. Tuple create कैसे करना है, कैसे create करते हैं tuple. Okay, so one example is directly you write variable is equal to parenthesis. मतलब ऐसे ये parenthesis लिखिए दो and separated with colon, right? Numbers 10 comma 20 comma 30. So directly you can write a tuple. So आप देख सकते हो यहाँ पे print करके tuple ऐसा print होता है, and then you can see the type. Clear? This is one of the way you can create a tuple. So what are the different ways? So next is like this. Okay, you can use a tuple as a inbuilt function. ये देखिए टपल इनबिल्ट फंक्शन हमने यूज किया. जैसे लिस्ट इनबिल्ट फंक्शन यूज करते थे, वैसे ही टपल नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन हमने यूज किया है टू क्रिएट अ टपल. सो हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी देखिए, हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऐसे बोला था. हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग डेटा टाइप हमने स्टोर किया है. दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज लिस्ट, राइट. और ये इंटीजर या फ्लोट, क्या है ये 20.23, इसका क्या डेटा टाइप है? कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, इंटीजर. इट इज अ फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप है. दिवाळीत काहीच अभ्यास नाही झाला वाटतं. हाँ यस, दिवाली में सब कुछ भूल गए क्या ऑनलाइन? Anyone? Integer, float, at least you should know what are the basic data types. Should not get confused. इसमें याद रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है. Okay, just a second. Okay, so we are proving it. So different data types. Yeah. अरे okay, वो float. Okay, right. ठीक है. So next is the range start end -1, और इस रेंज को हम टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? by using a tuple as a inbuilt function, right? ये inbuilt function है. कैसे पता चला? देखिए tuple and दो parenthesis. Hope you remember what is inbuilt function. Okay, clear है ना? तो so this is a tuple and we have created a range. Range is used, किस लिए यूज करते हैं रेंज? टू जनरेट अ नंबर्स. नंबर जनरेशन के लिए रेंज यूज होता है, राइट? यस, नो? ओके, आई गेस यू शुड रिवाइज. ठीक है, रेंज टू क्रिएट अ नंबर, और ये जो नंबर जनरेट हुए हैं उसे हमने लाइक वो नंबर को टपल के फॉर्म में ऐड किया है यहाँ पे. सो यू हैव क्रिएटेड अ टपल कॉल्ड माय टपल. सो इफ आई एग्जीक्यूट, देखिए you can see start at 10, end at 25 with step 3. start 10 हुआ है, right? end 25 हुआ है क्या? नहीं. so end should be end -1, so 24 को end होना चाहिए.
बट स्टिल यहाँ 24 है क्या? इट शुड बी लाइक दिस राइट? तो यहाँ पे स्टिल 22 पे ही खत्म हुआ है. एनी रीजन? सो 24 माइनस 22 कितना आता है? 2. इज इट राइट? हमारा स्टेप क्या है? 3 है. तो ये इसीलिए नंबर 24 तक नहीं जाएगा, राइट? प्रीवियसली आप चेक कीजिए, 10 13 माइनस 10 3 आ रहा है, 16 माइनस 13 3 है, 19 minus 16 3, 22 minus 19 3. So that's why you get a 22 as the end. So again one more reason, ये देखिए, if I write something like this, score is equal to 10 comma 20 comma 30, ना मैंने कुछ ब्रैकेट लिखा है ना मैंने कुछ parenthesis लिखा है, still Python will consider this as a tuple. If I execute, ये देखिए, स्कोर नाम का वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? यहाँ पे हमने टाइप स्कोर किया है, कॉल्ड टपल. ओके, एंड आईडी, दिस इज द आईडी. आईडी क्या होता है? मेमोरी लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल, राइट? होप ये पता है ना, ये हम डायग्राम निकालते थे एज इन. सो एक बॉक्स था, इस बॉक्स का नाम है स्कोर, और उसमें ये सब कुछ ऐसा नंबर रहता था, एंड देन इनसाइड दिस इज 10, 20, 30. Okay, sorry, 10, 20, 30 ऐसे ही था, राइट? ये जो है मेमोरी लोकेशन, दिस इज अचीव्ड यूजिंग आईडी. ये आईडी नाम का जो इनबिल्ट फंक्शन है, दिस इज द आईडी, दिस इज व्हाट इट गिव्स. ये नंबर है यहाँ पे. ओके, क्लियर? चलो, सो विल चेक वेदर इट इज म्यूटेबल. इम्यूटेबल भी चेक करते हैं. वी हैव क्रिएटेड अ स्कोर, उसमें हमने ऐड किया है 10, 20, 30, 40, एंड आई एम यूजिंग अ पॉप. पॉप क्या करता है? रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट, राइट? लिस्ट डॉट पॉप करता हूं तो आई विल गेट अ लास्ट एलिमेंट, डिलीट हो जाता है लिस्ट से. तो यहाँ पे भी आप चेक कर दीजिए, टपल. टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड पॉप. व्हाई? बिकॉज टपल इज अ इम्यूटेबल. आपने एक बार क्रिएट कर दिया टपल तो यू कैन नॉट चेंज. यही सीखा है ना हमने. तो इसलिए अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, रिमूव ऐसे फंक्शंस वर्क नहीं होंगे. क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है क्या सबको? ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन बेसिक पाइथन से है. वेदर यू कैन क्रिएट अ टपल, हाउ यू कैन क्रिएट अ टपल. ये देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर. हमने अभी तक जो स्टेप देखा है वो 2, 3, 1 ऐसा ही देखा है. बट व्हाट इफ आई गिव अ फ्लोट? ओके, स्टेप में हमने फ्लोट कर दिया तो वर्क होगा क्या? सो यू कैन चेक हियर. सो फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड तो एज ए इंटीजर. मतलब स्टेप जो भी है, रेंज में आप देते हो स्टेप, स्टार्ट एंड -1 स्टेप हैज टू बी ऑलवेज अ इंटीजर. फ्लोट वर्क नहीं होता वहां पे. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन. Then again, so there is one famous question called how you can create a single value tuple. मतलब ऐसा आपको लिस्ट, मान लीजिए आपको लिस्ट क्रिएट करना है, तो व्हाट यू डू, आप लिस्ट करना है तो व्हाट यू डू, लिस्ट 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे. मान लीजिए क्वेश्चन इज आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट which consists of only one number. Let's take example 56. So what I can do, write a 56 and execute.
हो गया लिस्ट 1। इसका डेटा टाइप चेक कीजिए, लिस्ट, राइट दिस। बट आपको सेम क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन यू क्रिएट अ सिंगल वैल्यू टपल। ऐसा टपल क्रिएट कर सकते हैं क्या जिसमें एक नंबर है सिर्फ। लेट्स टेक एग्जांपल 56। सो व्हाट यू कैन डू, या श्योर कीजिए। सो इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यू पुट पैरेंथेसिस। ऐसे ही टपल क्रिएट होता है ना, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर वी चेंज इट टू पैरेंथेसिस एंड चेक। तो डेटा टाइप इंटीजर आ गया। हाउ, आपने तो बोला था सर, ये देखिए इसमें 2-3 एलिमेंट ऐड कीजिए, देन वी कैन कॉल इट अ टपल। ये देखिए टपल, बट एक नंबर से टपल होता है क्या? नहीं। सो दिस इज व्हाट यू कैन से सम ट्रिकी क्वेश्चंस। मतलब ये आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। ओके तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू रिलेटेड। तो सिंगल वैल्यू टपल कैसे बनाना है? सो ट्रिक इज यू नीड टू गिव अ कॉमा। ओके टपल, तो 56 कॉमा ऐसा लिखोगे तो वो टपल एज अ टपल कंसिडर होगा। एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब ऐसा आपको ये कहीं पढ़ा है कहीं सुना है तो ही ये इंटरव्यू में आंसर आ जाएगा, और एल्स इट्स बिट डिफिकल्ट। ओके क्लियर, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ सिंगल वैल्यू टपल, मतलब एक वैल्यू क्रिएट कैसे होगा टपल में। ओके फ्लोट, whether float will work in the integer or not, तो ये क्वेश्चन है। दिस इज व्हाट इट इज डन। यहाँ पे लिस्ट हमने क्रिएट किया है उसको ही, ये देखिए बाय द वे सिंगल नंबर लिखोगे तो भी ये इंटीजर कंसिडर होगा, एंड इफ यू गिव कॉमा इट विल बी अ टपल। ऐसा नहीं कि आपको पैरेंथेसिस देना जरूरी है, बिकॉज टपल इज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप, सो यू कैन ओनली राइट अ नंबर एंड गिव अ कॉमा। इससे क्या होगा, पाइथन विल आइडेंटिफाई इट एज अ टपल। ओके सो my tuple is equal to I can store anything ideally. Creating an empty tuple. So next question is empty tuple create करना है। empty list हमने create किया था in one of our example, right? Answer यहाँ पे we, या ये देखिए word in a vowel, ये क्या है? empty list, मतलब ये खाली लिस्ट है, और इसका यूज हमने आंसर स्टोर करने के लिए किया था। सिमिलरली कैन वी क्रिएट एम्प्टी टपल, लिस्ट क्रिएट किया है तो एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं क्या? चेक कीजिए कर सकते हैं क्या। सो दैट इज व्हाट द एग्जांपल इज। तो सी हियर टपल इज इक्वल टू दिस, क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल, टपल 1 पैरेंथेसिस लिखिए एंड चेक द टाइप और प्रिंट टपल 1। तो एम्प्टी टपल तो क्रिएट हो सकता है लाइक दिस, बट व्हाट इज द यूज, डू यू थिंक इट हैज एनी यूज? इसका कहीं पे यूज हो सकता है क्या एम्प्टी टपल का? थिंक। एम्प्टी लिस्ट क्यों यूज करते थे? क्योंकि हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर हम उसमें स्टोर कर सके। मैच मैच केस के केस के लिए, लिए। ओके कंपेयर सॉरी इट। सॉरी आई डिडंट गेट यू। हाँ सर हाँ फॉर फॉर कंपेरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए। ओके 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 कंपैरिजन करने के लिए यू कैन चेक empty tuple, but you might have some many other options as well. Generally empty tuple other than comparison और किसी और काम के लिए यूज करना डिफिकल्ट है। why? because immutable है। कैन आई मॉडिफाई दिस? नो। मैं इसमें कुछ वैल्यू और एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो इसीलिए थोड़ा
कहीं ऑब्जर्व नहीं होगा आपको कि एम्प्टी टपल यूज किया है, क्योंकि वंस इट इज क्रिएटेड you cannot change, you cannot modify. Okay. So next we can understand how you can access the element. Element कैसे हमें access करना है. मान लीजिए you have a tuple called 0 1 2 3 4. By the way ये list है. Let's make it tuple. Tuple. ये tuple है, right? कैसे पता चला? क्योंकि ये parenthesis के अंदर है and separated with comma. Comma से separate हुए हैं elements. So this is a tuple. Now I want to extract numbers 1 2 3 4 5 जो numbers है इनको मुझे one by one access करना है. So what I can do, I can use simply for loop. For I in range इतना बड़ा लिखने के बजाय I can use this as well. Tuple range 5 and execute. Sorry. Print I भी कर सकते हो और you can create a tuple and then access the element. Zero one two. I am accessing the element one by one. 0 1 2 मतलब अलग separate element मैं निकाल सकता हूँ. So you can use some variable as well. ये tuple किसी variable में store कीजिए and you can use that as a accessing element और access करने के लिए. तो how this is possible, or there is one more method called indexing and slicing, right? Python क्या करता है, whenever we store any information in the form of tuple is equal to ये parenthesis हम use करते हैं, तो Python internally creates these numbers. ये numbers internally create करता है Python, right? So 10 13 16 19 22 ये इंफॉर्मेशन है, डेटा, एंड नीचे के जो नंबर दिख रहे हैं आपको 0 1 2 3, दीज आर नथिंग बट इंडेक्स. ये इमेजिनरी है. पाइथन क्रिएट्स दिस इंडेक्स, राइट? ये पॉजिटिव इंडेक्स है एंड ऊपर से ये नेगेटिव इंडेक्स है जो -1 -2 से स्टार्ट. सो आई कैन यूज दिस नंबर्स एज वेल. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई वांट टू फाइंड आउट 13. मुझे 13 प्रिंट करना है. तो व्हाट आई कैन डू, my underscore tuple स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 1 नंबर दे सकता हूँ. एग्जीक्यूट. सॉरी, बाय द वे व्हाट इज द एरर? ठीक है. सो आपने वो टपल क्रिएट नहीं किया था, सो यू आर एक्सेसिंग द टपल विदाउट क्रिएटिंग इट. माई टपल 1 13, राइट? व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड आउट 19 मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए. एज ए 19 ये जो एलिमेंट है लिस्ट टपल का वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है. कैन आई मेक इट 3, राइट? व्हाट कैन आई यूज -4 एज वेल. -4 से मुझे क्या आंसर आएगा? आई विल गेट 30. सो दिस इज नथिंग बट इंडेक्सिंग. इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग. जब आगे जाके आप पांडास, एक लाइब्रेरी है कॉल्ड पांडास, आपको इंडेक्स वहां पे दिखाई देंगे. एक्चुअली यहाँ पे जो इमेजिन आप कर रहे हो, पांडास डायरेक्टली आपको दिखा देता है कौन से इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है. सो यू कैन यूज डायरेक्टली. So there are a couple of example I have considered here. 1 -1 2 3 individual elements मैंने extract किया है. Yes, very important question. आपने इंडेक्सेशन और स्लाइसिंग पढ़ा था, तो कोलन कोलन -1 ये किस क्वेश्चन का आंसर था, ये बताइए. दिस इज आंसर फॉर वन ऑफ द क्वेश्चन. हमने ये डिटेल में देखा है, स्ट्रिंग में. आपने इसके ऊपर होमवर्क भी किया है. इसके इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी है बहुत सारे. यस यस बोलिए. अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप. सर स्ट्रिंग भी होता है. यस.
दैट्स राइट, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, वाव, मॉम, एग्जाम्पल दिया था ना, वाव रिवर्स करके हमें क्या मिलेगा, वाव, राइट। हम्म, याद है कि नहीं है? इफ ये इतना है, दिस इज डब्ल्यू ओ डब्ल्यू का एग्जाम्पल लिया था हमने, और इफ आई रिवर्स राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सेम है ये, राइट। सो दिस इज नथिंग बट पैलिंड्रोम, और ये हमने चेक किया था, वी रोट अ लॉजिक फॉर दिस, आपने प्रोग्राम भी किया है इसका। सेम आई कैन डू इट हियर, माई टपल कोलन कोलन -1, so what it gives, a reversal of tuple। ले देखिए, टपल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, so it will start at 10, end at 22, but if I write colon colon -1, I end at 22, start at 10। ओके, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, रोहित, निखिल, प्रथमेश, संतोष, तन्मय, तुषार, यशराज, अक्षय, समझ रहा है ना व्हाट वी आर लर्निंग, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? ओके, सो अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे टपल में आई हैव ओनली 5 एलिमेंट्स, राइट, इंडेक्स 4 तक है, व्हाट इफ आई राइट इंडेक्स 10? यस, क्या आएगा आंसर? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मान लीजिए -4 की जगह इफ आई राइट 100 एलिमेंट है क्या मेरे इस टपल में? नहीं है, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, राइट। टपल और लिस्ट में भी यही एरर आता था। ओके, सो slicing will work in the same manner, start, end -1 and step। तो मान लीजिए मुझे स्टार्ट करना है, वेयर 13 से स्टार्ट करना है, 19 तक जाना है, मतलब इतने ही एलिमेंट आने चाहिए, 13, 16 and 19। So how should I do it? So I will use a इंडेक्सेशन और स्लाइसिंग। कैसे? स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, एंड कहाँ पे होगा? 3 पे, राइट, एंड स्टेप 1, डिफॉल्ट है तो 1, एग्जीक्यूट। अरे ये तो आइडियल 19 आना चाहिए था, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड, इट इज प्रिंट 13 and 16 ओनली। क्या था ये? स्टार्ट, end -1, don't forget the end -1, if I want to print 3, 3 तक जाना है तो what I should write? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4, right? 13, 16 and 19, start, end -1, step। स्टेप क्या करता है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, एज इन 1 -0 1 आएगा, 2 -1 1 आएगा। सो इफ आई राइट स्टेप एज अ 2, ओके, और मैं ये 4 निकाल देता हूं, तो क्या आएगा? इफ आई डोंट राइट एनीथिंग, तो डिफॉल्ट क्या रहता है? लास्ट एलिमेंट, राइट। सो स्टार्ट, एंड -1, स्टेप, स्टेप 2 का है, मतलब 2 -0 एंड 4 -2, तो 10, 16 एंड 22 ये आने चाहिए मुझे। अरे सॉरी, स्टेप ऑफ स्टार्ट 1 से हुआ है, नॉट 0। सो 1 से 1 एंड 3, 3 के आगे कुछ है क्या? 2 के स्टेप के लिए नहीं है, तो 13 एंड 19। सो इफ आई वांट टू स्टार्ट डिफॉल्ट, तो कुछ मत लिखो, ये देखिए, डिफॉल्ट मतलब 10 से स्टार्ट होगा, 16 पे जाएगा एंड 22, मतलब 0, 2 एंड 4। क्लियर? स्टार्ट, एंड -1, स्टेप, सबको क्लियर है? लिस्ट में देखा है हमने, दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन द लिस्ट, स्टार्ट, एंड -1 एंड स्टेप, पूरे डिटेल में हमने स्टडी किया है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल
then I would suggest कि आप revise कीजिए. Maybe you have taken a long break, 5 days, right? More than that, 7 days, I guess. So both you should revise. Okay. Okay. So एज पर प्रोसेस हम क्या देख रहे थे, क्रिएटिंग टपल कैसे क्रिएट करना है, एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है, व्हाट आर द डिफरेंट इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग. नाउ वी विल चेक सम मेथड. टपल, टपल्स के मेथड, राइट. There are some operators as well. We'll cover the operator and then we'll come to the methods. So operators, mathematical operations. मतलब tuple 1 plus tuple 2, I can create tuple 3. So check work होता है कि yes, it is working. So 11, 12, 13, 14, as in it is क्या बोल सकते हैं, कंबाइन करता है, कॉन्कैटिनेट बोलते हैं. इट डजंट ऐड, मतलब ये दोनों एलिमेंट ऐड नहीं होते, ये सिर्फ मर्ज होता है. इसके 3 एलिमेंट, ये देखिए, एंड ये लिस्ट के 5 एलिमेंट. सो ये 5 एलिमेंट है, राइट. तो ये कंबाइन करता है, कॉन्कैटिनेट करता है. दिस डजंट डू एडिशन, एडिशन नहीं होता इसमें. ओके. Then same thing you can check multiplication. Multiplication वर्क होता है क्या? Yes. Multiplication क्या करता है? रिपीटेशन. ये 3 का 3 बार रिपीट हुआ है, देखिए 1, 2 and 3. So multiplication भी वर्क होता है. माइनस वर्क होता है क्या? डिवीजन वर्क होता है क्या? Yes. चेक. लिस्ट में वर्क होता है क्या? सेम टपल में, लिस्ट में वर्क होता है क्या माइनस? नो. माइनस, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी माइनस, डिवीजन, डबल डिवीजन, एम्परसेंट, ये सब कुछ वर्क नहीं होता लिस्ट में. सेम वे टपल में भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि दिस इज अ रीड ओनली वर्जन. लिस्ट का रीड ओनली वर्जन है ये, मतलब नॉन चेंजिंग वर्जन है. तो लिस्ट में जो जो वर्क होता है सेम टपल में भी वर्क होता है. Okay. So membership operator in, not in. So ये क्या करता है, this check. ये देखिए 44 in tuple 2, मतलब tuple 2 के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में 44 ये नंबर है कि नहीं, ये आपको चेक करना है. तो you can use a in operator. So 44 in tuple 2. So I will get answer as true. जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा था, एंड, और, ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए. बट ओके, सो बोथ ऑपरेशंस गिव्स यू अ बूलियन एज आउटपुट, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देते. तो सिमिलरली इन एंड नॉट इन करके 2 ऑपरेटर है, इनका भी आंसर हमेशा बूलियन में आता है. सो sorry, in will check whether the element is inside that data type or not. और not in operator क्या करता है, रिवर्स ऑफ इन. इन का आंसर जो भी आता है उसका रिवर्स कर देता है. मान लीजिए 50 इन टपल 2, टपल 2 में 50 है क्या, इसका आंसर क्या आएगा? नो, मीन्स फॉल्स, राइट. बट मैंने नॉट इन ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पे नॉट ऐसा लिखा, तो ये फॉल्स को क्या कर देगा? ट्रू. मतलब जो आंसर इन से आता है उसका इनवर्स नॉट से आता है. ओके, अंडरस्टूड. इन, नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर्स. Okay, so let's understand one more thing called packing and unpacking. There is something called packing and unpacking. ये क्या है? So this is a extension of default data type. जैसे Python default data type create करता है, देखिए my tuple is equal to, मैं ये लिखता हूँ 60, 62, 64 ऐसे numbers.
सो पाइथन क्या करता है, इसको एज अ टपल ट्रीट करता है, राइट। ये देखिए, कॉपी, यू कैन चेक द टाइप, देखिए इसका टाइप क्या है, टपल। सो व्हाट इफ यहाँ पे 3 नंबर है एंड आई एम क्रिएटिंग अ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, so that is also possible। ये देखिए, so what I have done here is instead of this number, ये नंबर मैंने एक एक वेरिएबल में स्टोर किया है, this in the variable of a, और ये नंबर है b में, और जो 64 है इसको मैंने c में स्टोर किया है, एंड आई एम यूजिंग दिस कोड, जो ये माई टपल है, मान ये देखिए, माई टपल इज इक्वल टू a b c, इंस्टेड ऑफ नंबर आई एम यूजिंग अ वेरिएबल, मतलब मैं वेरिएबल का यूज करके भी टपल क्रिएट कर सकता हूँ। कहाँ पे यूज होता है, आइडियली आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, ये बैक एंड में जब प्रोग्राम लिखा है पाइथन, तो पाइथन ये यूज करता है लॉजिक, सो डायरेक्टली बहुत कम बार यूज होता है। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, आपको माई टपल एक वेरिएबल मिलेगा, आपको माई टपल 12, सॉरी यहाँ पे भी आप माई टपल 12 कर सकते हैं, देखिए फ्रॉम वेरिएबल्स, वेरिएबल का यूज करके आपने टपल क्रिएट किया। अभी तक हम सिर्फ लिस्ट वगैरह और डायरेक्टली नंबर यूज करते थे, बट आई कैन यूज अ वेरिएबल टू क्रिएट अ टपल एज वेल, ओके। देन इसका ही इनवर्स, देयर इज समथिंग इनवर्स, इनवर्स में क्या होता है, बाय द वे इसी को बोलते हैं पैकिंग, टेक्निकल और प्रोग्रामेटिकली इसको बोलते हैं पैकिंग, पैकिंग ऑफ टपल। कहाँ पे होता है, विल अंडरस्टैंड जब आप फंक्शंस कॉल करते हो, फंक्शंस में रहते हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आप भेजते हो, राइट। इन दैट केस दिस थिंग्स वर्क। इसका प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, देयर इज वन एग्जांपल वेयर पैकिंग एंड अनपैकिंग इज देयर, मतलब आप पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल यूज करते हो। हायर ऑर्डर फंक्शंस हम जब सीखेंगे, दैट टाइम यू विल रियलाइज। इसका इनवर्स टू है, इनवर्स मतलब मेरे पास 3 वेरिएबल है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इज इक्वल टू माई टपल, जो माई टपल में नंबर्स थे वो सारे एक एक 1 बाय 1 इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। हमने वेरिएबल का यूज करके टपल बनाया था, अभी टपल का यूज करके हम वेरिएबल बना रहे हैं, सो दिस विल आल्सो वर्क। ये देखिए, सो आई हैव क्रिएटेड टपल 12 और मैंने 3 नंबर लिया है, एंड इफ आई एग्जीक्यूट, तो नंबर 3 में क्या है 64, तो यहाँ पे 64 आया है। तो नंबर 1 में क्या है 60, तो प्रिंट करके देखिए 60 आया है कि यहाँ पे 60। सो बाय फ्रॉम टपल आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं अनपैकिंग ऑफ अ टपल। देयर इज समथिंग कॉल्ड अनपैकिंग, ओके, पैकिंग एंड अनपैकिंग। ये एक्चुअल पाइथन यूज करता है इन द बैक, लाइक मैनिपुलेशन ऑफ और कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए पाइथन ये पैकिंग एंड अनपैकिंग कंसेप्ट को यूज करता है। प्रैक्टिकल यू मे नॉट डायरेक्टली यूज, मतलब आप ऐसे वेरिएबल कभी क्रिएट नहीं करते टपल का यूज करके। अंडरस्टूड? ऑनलाइन एनी रिस्पॉन्स, एनीथिंग? सो जस्ट टू ब्रीफली समराइज, हमने स्टार्ट किया था टपल से, सो वी अंडरस्टूड टपल कैसे क्रिएट होता है, हाउ वी आर क्रिएटिंग अ टपल, राइट, बाय यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, नहीं तो डायरेक्टली पैरेंथेसिस हम लिख सकते हैं। देन एक्सेसिंग द एलिमेंट, टपल के अंदर जो एलिमेंट है उसे हमने इंडेक्सिंग यूज किया, स्लाइसिंग यूज करके एक्सेस किया, राइट, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। देन नेक्स्ट वन एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट होता है, सिंगल वैल्यू टपल, उससे रिलेटेड हमने 2-3 प्रोग्राम्स और एग्जांपल चेक किया। देन वी टच्ड अपॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन वगैरह। देन
ऑपरेटर्स, उसके बाद फिर मेंबरशिप ऑपरेटर देखा हमने, इन एंड नॉट इन, ये क्या आंसर देता है बुलियन के फॉर्म में, राइट, ट्रू एंड फॉल्स. Then there are some different operators as well. Mathematical arithmetic तो देखा था हमने, but all other operators work same as a list. List में जो operator आपने use किया था, same operator आप tuple में भी use कर सकते हैं. Okay, so these are the basic. Then last point is a method. जैसे हमने list के methods देखे थे, वैसे ही similarly there are methods for tuple as well. तो ये लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि टपल आई कैन नॉट मॉडिफाई, राइट. सो इसमें अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, रिमूव, ये मेथड्स अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हो टपल के मेथड्स, बहुत कम मेथड्स अवेलेबल है. सो रेफरिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन अगेन, देखिए इंडेक्स काउंट नाम का कुछ यूज कर सकते हो, लेंथ यूज कर सकते हो, मिन, मैक्स, कंपैरिजन, सम, सॉर्टेड, रिवर्स्ड, ओके, ऑल, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, ये वर्क होता है कॉन्केटिनेट, मल्टीपल कॉन्केटिनेट, मल्टीप्लिकेशन का. सो नॉट मच, ये सिंपल बेसिक मेथड से आप वर्क कर सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट मॉडिफाई. उसका लिमिटेशन है कि ये मॉडिफाई नहीं होता, इसीलिए इस पे ऑपरेशंस नहीं होते. वेरी लिमिटेड मेथड्स आर देयर. सो देयर वन इंटरेस्टिंग मेथड, यहाँ पे आप जिप नाम का एक फंक्शन है विच यू शुड अंडरस्टैंड. जिप क्या करता है, देयर इज वन मोर मेथड और वन मोर वे यू कैन क्रिएट अ टपल. ये देखिए यहाँ पे दो लिस्ट है, x and y, दो लिस्ट. इफ आई डू जिप और ब्रैकेट में x, y दे देता हूं, तो व्हाट आई गेट इज अ टपल, एज इन कंबाइन करता है ये दो लिस्ट और दो इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आई कैन कॉम्प्रेस द डेटा. जैसे हमने फोल्डर का जिप देखा है, जिप मतलब हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं इंफॉर्मेशन, मल्टीपल फोल्डर्स को कंबाइन करके वी क्रिएट अ जिप फाइल, राइट. तो वही फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी अचीव कर सकते हो विद इन द पाइथन, और उसी फंक्शन का नाम है जिप. सॉरी, या ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास वर्ड्स और वर्ड लेंथ ऐसे दो लिस्ट है. नाउ आई वांट टू कंबाइन लाइफ एंड 4, ये कंबाइन करता है, इज एंड 2 ये कंबाइन करता है, स्टडी एंड 5 कंबाइन करना है. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट एनी xyz वेरिएबल इज इक्वल टू जिप वर्ड आणि वर्ड लेंथ, वर्ड एंड वर्ड लेंथ. सो इफ आई एग्जीक्यूट, व्हाट आई विल गेट इज लाइफ इज स्टडी, लाइफ कॉमा 4 ये कंबाइन होके एक टपल बन गया, इज कॉमा 2, स्टडी कॉमा 2. So you can combine the information. Why I am using the for loop here? Okay, because this xyz or zip, इसका आंसर जो है this is nothing but a object. ये क्या करता है, returns a object value. देखिए if I execute this zip I will get something different. देखिए zip add object, इसका एक ऑब्जेक्ट होता है. तो ये ऑब्जेक्ट हमें एग्जीक्यूट और इसे क्रिएट करना पड़ता है. देन वी नीड टू यूज अ सॉरी वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन यूजिंग फॉर लूप. ये फॉर लूप यूज करके हमें ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है विच इज इनसाइड अ ऑब्जेक्ट. So same thing we will understand in case of higher order function. Higher order functions भी हमें object देते हैं. object मतलब zip. मान लीजिए आपको बहुत बड़ा डेटा किसी को भेजना है, तो आप क्या करते हो, जिप फाइल बनाते हो उसका, राइट. मान लीजिए आपको एक 20 फाइल्स और 20-30 फाइल्स आपको ईमेल में भेजना है, तो आप 30 फाइल एज अटैचमेंट करते हो कि यू कंबाइन 30 फाइल्स इनटू वन फोल्डर, जिप फोल्डर बनाते हो, राइट.
और उस फोल्डर को आप अटैच करते हो। सिमिलरली जिप यहाँ कंबाइन किया है हमने, और ये जिप ओपन करने के लिए जैसे हमें विनरार एप्लीकेशन लगता है और 7zip नाम का एक एप्लीकेशन लगता है उस फाइल को ओपन करने के लिए, सिमिलरली पाइथन में भी हमें लूप यूज करना पड़ता है टू गेन और टू ओपन दैट जिप, जो जिप हुआ है और कॉम्प्रेस जो हुआ है इंफॉर्मेशन, उसे ओपन करने के लिए वी नीड टू यूज अ लूप। ओके, अंडरस्टूड। इस दिस इज रिलेटेड टू योर, आपके जो लैपटॉप में होता है सेम थिंग पाइथन में भी होता है, ये सिर्फ प्रोग्रामेटिकली हमने यहाँ पे करके दिखाया है। ओके, सो दिस इज हाउ लिस्ट वर्क्स मोस्टली। ये जो जिप वगैरह है आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, मतलब ये जिप है और ये जो ऑब्जेक्ट वगैरह है, राइट, ये ऑब्जेक्ट, ये इसका यूज होता है मशीन लर्निंग में वगैरह मॉडल्स जो बनते हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, दोज आर नथिंग बट अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रहता है। उससे एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड टू यूज सम मेथड्स, मतलब अलग अलग फंक्शनैलिटी अचीव होता है जिप करने से। व्हाई आई एम टेलिंग यू जिप, क्योंकि ये आगे जब आप मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ोगे उसमें इसका रेफरेंस आता है बहुत बार, जिप और ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए ये, ओके, सो ये जिप जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एक मशीन लर्निंग के जो भी एल्गोरिदम आप पढ़ोगे आगे जाके, ये ऐसे फॉर्म में रखेंगे, जिप एट, ऑब्जेक्ट एट, ऐसे आपको आउटपुट आता है बहुत बार। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये एक जिप फोल्डर है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। ओके, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यू कैन यूज अ फॉर लूप so that you can find information hidden inside a zipped folder. क्लियर, समझ में आया? होप यू आर एबल टू रिलेट क्या हो रहा है, व्हाट इज अ डेटा टाइप, लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। मोर इंटरव्यू में ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल एंड सेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी। अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो और यू कैन टेल एज अ डिफरेंस। मतलब मान लीजिए लिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल, मतलब आप चेंज कर सकते हो, टपल इज इम्यूटेबल, टपल कैन नॉट बी चेंज्ड। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है, पैरेंथेसिस के साथ लिखा जाता है, राइट। डिफॉल्ट डेटा टाइप है टपल। दोनों हेट्रोजीनियस है, both work on indexation and slicing. Similarities, heterogeneous, indexation, slicing, these are the similarities. Okay, clear, समझ में आ रहा है? Okay, so we will not start the next data type today, आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, but I have one request. I see बहुत ब्लैंक, जब भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ आप लोगों का सब ब्लैंक हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन पीपल। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर कि ऑनलाइन जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको कितना समझ में आ रहा है, बट इफ यू आर फीलिंग ब्लैंक और फीलिंग लॉस्ट और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्लास में, सो स्ट्रांगली एडवाइज कि आप रिवाइज कीजिए पुराने लेक्चर्स, देखिए क्या क्या हमने सीखा है, सो दैट यू विल रिलेट कि क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या आपको पढ़ना है, व्हाट इज द होमवर्क, असाइनमेंट्स। ओके, सो होमवर्क है, लिस्ट में जो हमने प्रोग्राम्स किया है सारे प्रोग्राम्स आपको टपल के फॉर्म में करना है। ओके, एंड whatever problem you face we can discuss it tomorrow. आइडियली ये पॉसिबल नहीं होगा बट आपने कंप्लीट कर दिया तो लेट्स सी। ओके, so there are a few programs such as find odd numbers, find even numbers और vowels a e i o u, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रोग्राम लिखा था।
लिस्ट में. सो सेम प्रोग्राम्स यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ टपल, मतलब टपल का यूज करके आपको एग्जीक्यूट करना है. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, good then. Thank you. Thanks a lot for your time. We will end our lecture here. Okay. Sir,